students, how are you all? I hope you all are doing well. And I am Rashi Chaudhary taking a lecture of business communication. And today I am here with a new topic, types of communication. Yes, there are the types of communication. There are two types of communication, verbal and non-verbal. In verbal communication, oral and written, and in non-verbal communication, sign language, body language and paralanguage. And sign language has two parts, visual signs and audio signs. Yes, so now we discuss about verbal communication. Yes, what is verbal communication? The word verbal means connected with words. The use of words. Human beings are the only species gifted with the use of words that makes language. The process of communication involves the use of common set of symbols between the sender and the recipient. Yes, now the oral communication. Man learns to speak much before writing. बोलने से पहले इंसान क्या करता है, लिखना सीखता है. और in the same way, in an organization, people speak much before writing. Oral communication is a face-to-face communication. It may be in the form of direct talk and communication between the speaker and the listener when they are both physically present at the same place. Yes, oral communication is not recommended in which formal record of communications is required and when communication is lengthy and distant. Oral communication can take any of the following forms, types of oral communication and forms: face-to-face talk, telephonic talk, pagers, mobile phone, lectures, social gatherings, conferences, interviews, dictation, instructions, audio visual aids, slides, movies, etc., voicemail, teleconferencing. These are the types of oral communication. Clear? Yes, तो oral communication क्या है? Mainly oral communication है, जैसा बताया गया है कि आप लिखने से पहले बोलना सीख लेते हैं, है ना. जब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो भी पहले मुंह से साउंड करता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, साउंड करता है, बोलता है, तो बोलना सीखता है पहले, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन करता है पहले, उसके बाद वो रिटन कम्युनिकेशन करता है. और ओरल कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स हैं, जैसे फेस टू फेस टॉक, है ना, क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं वो, सोशल गैदरिंग्स होती है वो भी ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है, टेलीफोनिक टॉक, फोन पे आप बात करते हैं, जो डिक्टेशन होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, है ना, ये सब ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं. नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जो जनरली कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि जो लिखकर किया जाए. Yes, written communication is one of the formal system of communication. It is one of the best and reliable way of communication. This method is best suitable in the situations when there is need to send the informations to the person who are distantly placed and where records are required to be kept in written form. क्लियर? यानी कि रिटन फॉर्म, रिटन कम्युनिकेशन जो है एक फॉर्मल सिस्टम है कम्युनिकेशन का. ठीक है, ये जो मेथड है ये ज्यादा सुटेबल माना गया है और उन सिचुएशंस में ज्यादा सुटेबल माना गया है जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसको क्या ड्यूटी दी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, है ना, उनका आप उनकी ड्यूटीज मेंशन करके उनके सिग्नेचर करा लीजिए, या आप कोई आपको कुछ बताना चाहता है उसके सजेशंस आप रिटन में ले लीजिए, कोई एप्लीकेशन है वो रिटन में ले लीजिए. तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिटन कम्युनिकेशन के टाइप्स भी हैं: रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, मेमोरेंडा, न्यूज़पेपर्स, है ना, नोटिस बोर्ड, ऑर्डर्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, एग्रीमेंट्स. क्लियर? तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है? ये जो रिटन कम्युनिकेशन है एक रिटन फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, और रिटन और ओरल दोनों ही कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. और वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना. वर्बल का जो मीनिंग है, वर्ड वर्बल मीन्स कनेक्टेड विद वर्ड्स एंड द यूज ऑफ वर्ड्स. तो जो वर्ड्स का यूज होता है, शब्दों से जुड़े रहना, यानी कि ओरल और रिटन के थ्रू हम वर्ड से जुड़े रहते हैं और इस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स दिए हैं. फर्स्ट इज साइन लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज के टू पार्ट्स हैं, विजुअल साइन एंड ऑडियो साइन.
ठीक है, अब साइन लैंग्वेज होती क्या है, देखिए, marks or symbols used to mean something is deemed as sign language. Gestures are used in the place of words. For example, the language system of deaf people and hitchhikers, finger is the example of sign language. ठीक है, जो हिचकर्स होते हैं या जो डीफ एंड डम होते हैं उनको फिंगर मूवमेंट करके समझाया जाता है कि ये कुछ जो लैंग्वेज होती है उनकी फिंगर्स के थ्रू होती है, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू होती है, फिंगर्स के थ्रू होती है, उससे वो समझ जाते हैं। तो ये एक साइन है ना, ये एक साइन है जिसके थ्रू वो समझ जाते हैं। साइन मार्क्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, फिंगर्स के मूवमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये एक साइन लैंग्वेज होती है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, विजुअल साइंस और ऑडियो साइन, है ना। विजुअल साइन जो होते हैं वो जो आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। जो डीफ एंड डम हुआ उसने मान लीजिए फिंगर मूवमेंट्स को देखा और समझ लिया, पिक्चर हुआ कोई उसको देखा समझ लिया। साइन इज अ मार्क और अ पिक्चर विद स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, है ना, रेड येलो ग्रीन, तो रेड लाइट जब होती है वो क्या इंडिकेट करती है, नॉट टू मूव, है ना। और लेकिन येलो लाइट क्या कहती है, गेट रेडी टू मूव, और ग्रीन लाइट कहती है नाउ इट इज सेफ टू मूव, यानी कि यू कैन गो। तो ये 3 लाइट्स जो होती हैं ये इंडिकेट करती है ना। ये विजुअल साइन है, उसमें से आपको कोई साउंड तो नहीं आता, बस आप लाइट सामने देखते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, है ना। अब आते हैं हम ऑडियो साइंस पर। ऑडियो साइंस को ऑडियो विजुअल साइंस भी कह सकते हैं, और ये ऑडियो विजुअल साइन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होते हैं, है ना, उसमें आपके सामने एक पिक्चर भी आती है, आप प्रॉपर आपको हर एक चीज करके दिखाई जाती है ना, और समझाई जाती है, और उसमें वर्ड्स का भी मतलब बोला भी जाता है, ऑडियो का भी यूज किया जाता है। तो जहाँ पे ऑडियो विजुअल दोनों यूज होते हैं तो वो ऑडियो विजुअल साइंस होते हैं। ऑडियो साइंस का हो तो जिसमें विजुअल ना हो, यानी कि सिर्फ आप जिसको सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? एज वी नो देयर आर वेरियस वेज टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ सीरियस स्टडी ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी। व्हेन वी स्टडी body language, we especially look for inner states of emotional as expressed through different part of the body and their physical movements. Clear? यानी कि जब भी हम बॉडी लैंग्वेज हमें स्टडी करना हो, बॉडी लैंग्वेज को जानना हो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता करना हो, तो अब सामने वाले कई बार क्या होता है, हम मन में कुछ सोचते हैं और सामने वाले को पता चल जाता है कि कुछ सोच रहा है, यानी कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। या फिर उस जो अगर कोई कॉन्फिडेंट बंदा है तो हमें उसका आई कांटेक्ट देख के पता चल जाता है कि वो कॉन्फिडेंट है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपके फेस एक्सप्रेशंस इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस देख के जो पर्सन है वो अंडरस्टैंड कर सकता है सामने से, है ना। आपके इमोशंस जो हैं आपकी बॉडी से शो होते हैं, ठीक है, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू योर आई कांटेक्ट, थ्रू योर चीक्स, थ्रू योर लिप्स, थ्रू योर गेस्चर्स, हेड, बॉडी। क्लियर? तो बॉडी लैंग्वेज में ये सब इंक्लूड होता है। और फेस, जैसे आपका क्लास में लेक्चर हो, है ना, तो टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है। फेस रिएक्शन से पता चल जाता है वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कॉन्फिडेंट है या नहीं है। क्लियर? तो ये है बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद हम आते हैं पैरा लैंग्वेज पर। पैरा लैंग्वेज क्या है? देखिए, पैरा लैंग्वेज का जो पैरा इसमें वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो है लाइक। तो पैरा लैंग्वेज इज लाइक लैंग्वेज। क्लियर? इट इम्प्लाइज हाउ अ पर्सन से समथिंग। ये इम्प्लाइज करता है कि कोई पर्सन अपनी बात को कैसे रखता है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वॉइस, है ना, आपकी जो वॉइस होती है उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। ये एक लाइक लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं, और ये इम्प्लाइज करती है कि पर्सन कैसे बोलता है ना, उसके बोलने का तरीका। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो क्लियर नहीं होती, है ना, रिदम क्लियर नहीं होता, ठीक है,
बहुत अटक अटक के बोलते हैं, ब्रेक्स के साथ बोलते हैं, तो ये सब इंक्लूड होते हैं पैरा लैंग्वेज में. इसमें फर्स्ट आता है पिच वेरिएशन. तो पिच वेरिएशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस इंट्रोड्यूस वाइड वेरिएशन इन पिच व्हाइल स्पीकिंग. दीज वेरिएशन आर नेसेसरी टू कैच बिजनेस अटेंशन. Speaking at length on the same level of pitch makes the speech monotonous or boring. ठीक है. One good way to improve a pitch variation is to observe others speaking to benefit through their suggestions. नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है स्पीकिंग स्पीड, यानी कि बहुत स्पीडली जो बोलते हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म ही कर दिया, सामने किसी के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है ना, और अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरीके से बात की जाती है ना. बहुत से लोग क्या होते हैं बहुत पॉज लगाते हैं अपनी बात में, बहुत ज्यादा रुक रुक के बोलते हैं. एक होता है वॉल्यूम वेरिएशन, है ना, वो भी पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होता है वॉल्यूम वेरिएशन. तो वॉल्यूम वेरिएशन में क्या होता है, जो स्पीच होती है शुड बी लाउड इनफ टू द ऑडियंस, नॉट टू लाउड टू पुट देम ऑफ. द लाउडनेस ऑफ अ वॉइस शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑडियंस. वॉल्यूम वेरिएशंस पुट लाइफ इनटू स्पीकिंग. और फिर लास्ट होता है इसका नॉन फ्लुएंसीज. ठीक है, जैसे बार बार रिपीट करते हैं, ओ यू नो, ओके एक्सेट्रा, ये सब नॉन फ्लुएंसीज के नाम से जाने जाते हैं. दे गिव द स्पीकर ब्रीथिंग स्पेस फिलर. स्पेस फिलर होते हैं ये, के बीच में बोल दिया ओ यू नो, एंड द ऑडियंस टाइम टू थिंक ओवर बट हैज बीन सेड. ग्रास ब्रेक्स. क्लियर. तो ये हमारे टाइप्स थे कम्युनिकेशन के. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी के चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. थैंक यू. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ.